Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today is 27th lecture of Digital Logic Design course, and in the previous lecture we have seen the sequential analysis with different types of flip-flop that were D flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, and later on we have shed some light on Mealy and Moore model of finite state machines. D flip-flop is the simplest to implement, as the characteristics of D flip-flop allows us to have the simple equation which is given on the input is appears same as on the output after a clock transition. But for the case of JK and T flip-flop, we have seen that we can make a characteristic equation of flip-flop. We will use the characteristic equation of flip-flop to make the state equations, and from the state equations we can derive a state table and state machine or state diagram, and we can implement the whole circuit using these equations. Today we will have a look on the state reduction and assignments. The analysis of sequential circuits starts from a circuit diagram and culminates in a state table or diagram. The design synthesis of a sequential circuit starts from a set of specification and culminates into a logic diagram. Design procedures are presented in the previous lecture. Two sequential circuits may exhibit the same input-output behavior but have a different number of internal states in their state diagram. The current lecture discusses certain properties of sequential circuits that may simplify a design by reducing the number of gates and flip-flops it uses. In general, reducing the number of flip-flops reduces the cost of the circuit. State reduction, we have discussed in the previous slide that two circuits can have same output with different number of states. So we will see how we can reduce the states of a logic or of a state machine or a state diagram to implement the same circuit with the minimum states. The reduction in the number of flip-flops in a sequential circuit is referred to as a state reduction problem. State reduction algorithms are concerned with procedures for reducing the number of states in the state table while keeping the external input-output requirements unchanged. Since m flip-flops produces 2 raised to power m states, a reduction in the number of states may or may not result in the reduction of flip-flops. An unpredictable effect in reducing the number of flip-flops is that sometimes the equivalent circuit with the few flip-flops may require more combinational gates to realize its next state and output logic. We will illustrate the state reduction procedure with some examples. We start with a sequential circuit whose specifications are given in a state diagram shown in the next slide. I'll show you. This is the state diagram which I am taking into the consideration. In our example, only the input-output sequences are important. The internal states are used merely to provide the required sequence. For that reason, states are marked inside the circle denoted by letters A, B, C, D, E, F, G. This is in contrast to a binary counter wherein the binary value sequence of state themselves is taken as the output. लास्ट लेक्चर में हमने मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स के एनालिसिस देखे थे कि हमने उसमें ये देखा था कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट है, सबसे सिंपल है, क्योंकि उसकी आउटपुट पे वही चीज़ आ रही होती है जो हम इनपुट पे देते हैं,
आफ्टर क्लॉक ट्रांजिशन। मगर जे के और टी फ्लिप फ्लॉप का थोड़ा सा प्रोसीजर और था। हम जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को देखते हुए स्टेट इक्वेशंस में उनको स्टेट इक्वेशंस के साथ सब्स्टिट्यूट करके स्टेट इक्वेशंस बनाते हैं। तब हमारे पास फिर जो इक्वेशंस आती हैं उनसे हम डायरेक्टली स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम और लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। फिर हमने देखा था मेले और मोरे मॉडल्स ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन के एक में जो है वो इनपुट जो आउटपुट है वो इनपुट प्लस प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और दूसरे मॉडल में हमने देखा था कि जो आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट के ऊपर कर रही होती है। आज के लेक्चर पे अगर बात करें तो आज हम स्टेट रिडक्शंस पे बात करेंगे, ठीक है। The analysis of a sequential circuit starts from the circuit diagram and ends into a state table or state diagram. जो हमने एनालिसिस देखा है सीक्वेंशियल सर्किट्स का, वो एक सर्किट डायग्राम से शुरू होता था और लास्ट में हम उसकी स्टेट टेबल और लॉजिक डायग्राम और स्टेट डायग्राम बना देते थे, ठीक है। अब दो सीक्वेंशियल सर्किट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इनपुट आउटपुट सेम हो मगर एक दूसरे की स्टेट्स एक जैसी ना हो, यानी नंबर ऑफ इंटरनल स्टेट्स कम हो। जिस तरह अगर एक सर्किट की आउटपुट इनपुट सेम है, वो उसकी 3 स्टेट्स हैं, दूसरा सर्किट वही काम 6 स्टेट्स में कर रहा होगा। अब हमारा जो काम है वो हम कम स्टेट्स के ऊपर जाएंगे। कम स्टेट्स का मतलब यह है कि आप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को कम कर रहे हो, और जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कम होंगे उसका मतलब यह है कि सर्किट की कॉस्ट उतनी ही कम होगी। तो जो स्टेट रिडक्शन का प्रोसीजर है उसकी जो बाय डेफिनेशन वो ये कहती है कि जब आप फ्लिप फ्लॉप्स की नंबर को कम कर दो तो उस काम को या इस प्रोसीजर को आप स्टेट रिडक्शन प्रॉब्लम का नाम देते हैं, ठीक है। स्टेट रिडक्शन एल्गोरिथम्स आर कंसर्न्ड विद द प्रोसीजर फॉर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्टेट्स इन स्टेट टेबल व्हाइल कीपिंग द एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स अनचेंज्ड। हम लोग स्टेट्स को तो रिड्यूस करते हैं मगर जो उनकी इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो सेम रहती है, उनमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। हम इससे पहले एनालिसिस में देख चुके हैं कि m फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब है 2m स्टेट्स। अगर हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे होते थे तो आपके पास 4 स्टेट्स आ रही थी। A reduction in the number of states may or may not result in the reduction number of flip flops. अच्छा, बाज दफा ये भी होता है आप स्टेट्स को कम करते हो मगर जरूरी नहीं है कि आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स की भी कम हो, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स आपके पास कम नहीं भी हो सकते हैं। और बाज दफा ये भी होता है कि आप फ्लिप फ्लॉप्स को कम कर देते हो मगर जो आउटपुट के लिए जो रिक्वायरमेंट कम्बिनेशनल गेट्स हैं, जो आउटपुट के लिए कम्बिनेशनल लॉजिक जो आ रही है वो बढ़ जाती है, ठीक है। कम्बिनेशनल गेट्स ज्यादा हो जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप्स कम हो जाएंगे, तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। हम ये जो स्टेट रिडक्शन का प्रोसीजर है ये एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो एग्जांपल हमारे पास आ रही है वो ये उसके लिए जो स्टेट मशीन है वो ये है। अब इसमें देख लें 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट्स है मेरे पास, ठीक है। और जो इनपुट सीक्वेंस हम ले रहे हैं इस एग्जांपल में वो ये बाइनरी स्ट्रिंग आ रही है 0101 011 0100। इस इनपुट पे हम देख रहे हैं और हम इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टेट मशीन है उससे हमें नजर आ रहा है जब हमने 0 इनपुट दी आउटपुट पे आपके पास 0 ही आया, जब आपने 1 इनपुट दी आउटपुट पे आपके पास 0 ही आया मगर आपके पास स्टेट बी में चला गया है। अब बी पे जब आपने 0 अप्लाई किया आउटपुट 0 है वो सी पे चला गया, और जब 1 अप्लाई किया तो वो डी पे चला गया, ठीक है। इसी तरह सी पे जब 0 अप्लाई किया वो ए पे चला गया, सी पे जब 1 अप्लाई किया तो वो डी पे चला गया। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए हम एक स्टेट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो assumptions जो ऊपर हमने स्टेट टेबल से लिए हैं, ठीक है, हम उसमें इनपुट आउटपुट सीक्वेंस देख रहे हैं। इनपुट आउटपुट जो अभी मैं पढ़ रहा था ऊपर कि जब 0 आया तो आउटपुट आपके पास 0 थी, जब इनपुट पे आपने 1 दिया है तो आपके पास स्टेट आउटपुट पे आपके पास 0 थी, ठीक है, स्टेट ए पे।
जब बी आया तो इनपुट आउटपुट के हम लोगों ने इधर स्टेट टेबल से देख लिया। अब हम इन स्टेट्स के लिए हम स्टेट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हमने ये 7 स्टेट्स इधर लिख लिए, प्रेजेंट स्टेट्स। नेक्स्ट स्टेट के लिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये नेक्स्ट स्टेट्स डिफाइन कर दी है जो स्टेट मशीन से हमको मिल रही है, जो स्टेट डायग्राम से मिल रही थी। और ये आउटपुट लिख लिया है कि जब x इज इक्वल टू 0 इनपुट थी तो आउटपुट क्या आ रही है, जब x इज इक्वल टू 1 इनपुट थी तो आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, ठीक है। अब यहां पे हमने प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट स्टेट देख लिया है। अब हम इन स्टेट्स को रिड्यूस करेंगे। कैसे? टू स्टेट्स आर स्टेट टू बी इक्विवेलेंट इफ for each member of the set of inputs they give exactly the same output and send the circuit either to same state or to an equivalent state। दो स्टेट्स आपस में बराबर तब होंगी जब स्पेसिफिक इनपुट के लिए उनकी आउटपुट एग्जैक्टली सेम होगी और वो सेम आउटपुट स्टेट के ऊपर या इक्विवेलेंट स्टेट के ऊपर जा रहे होंगे। गोइंग थ्रू द स्टेट टेबल वी लुक फॉर टू प्रेजेंट स्टेट्स that go to the same next state and have the same output for both input combination। स्टेट टेबल को जब हम गो थ्रू करेंगे तो हम ऐसी स्टेट्स को देखेंगे, ऐसी दो स्टेट्स को देखेंगे जिनकी स्पेसिफिक इनपुट के लिए आउटपुट भी सेम है और उनकी आउटपुट के ऊपर जो स्टेट्स जो नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं वो भी सेम है। अगर हम इसमें देखें, ये जो स्टेट टेबल हमारे पास बना था इसमें डी प्रेजेंट स्टेट के लिए EF आ रहा है, F की प्रेजेंट स्टेट के लिए EF आ रहा है, इनपुट आउटपुट भी सेम है, ठीक है। 0 पे ये भी E पे जा रहा है, 0 पे ये भी E पे जा रही है। D और F की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं अगर यहां से पेन ले लूं, इस पे देखें x इज इक्वल टू 0 पे D भी E पे जा रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे F भी E पे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 पे दोनों FF पे जा रहे हैं, आउटपुट भी दोनों की सेम है। मतलब ये कि ये दो स्टेट्स आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। सिंस स्टेट G एंड E आर इक्विवेलेंट, ऊपर अगर जाए हम, सॉरी वो नेक्स्ट स्टेट के लिए आ रहा है G, इस वो रिड्यूस टेबल था नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में देखेंगे E और G के लिए, E और G की आउटपुट सेम है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 के लिए सेम स्टेट्स के ऊपर जंप कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी सेम स्टेट्स हैं और आउटपुट भी दोनों की सेम है स्पेसिफिक इनपुट के लिए। मींस कि E और G जो है ये स्टेट्स आपस में इक्विवेलेंट है। तो इन दोनों स्टेट्स में से हम किसी एक स्टेट को रिमूव कर सकते हैं। द रो विद द प्रेजेंट स्टेट G इज रिमूव्ड, state G is replaced by state E each time it occurs in the column headed next state। हम G को रिमूव कर देंगे, ठीक है। G की जगह हमारे पास एक स्टेट E ही रह जाएगी। तो जहां जहां ऊपर G लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह इधर G लिखा हुआ है, इस G को भी हम E से रिप्लेस कर देंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेट टेबल आएगा उसमें ये G जो है वो E से रिप्लेस हुआ है। अब इस टेबल पे बात करें, इस टेबल में स्टेट D और स्टेट F आपस में इक्विवेलेंट है। ये चीज हम पहले थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है, ठीक है। अब इस स्टेट में हम F को D से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी F और D इक्विवेलेंट है, हम स्टेट D को F से रिप्लेस कर सकते हैं। जहां जहां ये F लिखा हुआ है उस सारों में D आ जाएगा और ये वाला F यहां से रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। इस F को हम निकाल देंगे क्योंकि ये स्टेट्स एक तरह से डुप्लीकेशन जो थी वो हम खत्म कर रहे हैं ताकि स्टेट्स रिड्यूस हो जाए। और इस इन F को हम D से रिप्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट टेबल में आप देखें तो ये सारी D से रिप्लेस हो गई हैं। अब इस टेबल से एक दफा फिर गो थ्रू करते हैं, ठीक है। स्टेट C और स्टेट D, नहीं, ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की आउटपुट डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है बाकी स्टेट्स को देखें, ए बी, नेक्स्ट ए बी, कहीं पे भी स्टेट आपको सी डी आपको नेक्स्ट नीचे नहीं मिल रही है, ए डी मिल रही है, मगर आउटपुट दोनों की डिफरेंट है। तो ये आप
इक्विवेलेंट स्टेट्स नहीं है, और ईडी तो कहीं ऊपर या ऊपर भी स्टेट्स में नहीं है, नीचे भी स्टेट्स में नहीं है। मतलब इसका है कि इससे ज्यादा अब आपके पास मजीद स्टेट्स रिड्यूस नहीं हो सकती हैं। यहां तक हम मैक्सिमम स्टेट रिडक्शन के ऊपर आ गए हैं। तो अब इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे पास जो स्टेट मशीन है वो ये आगे बन गई है। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 स्टेट्स के साथ सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, सेम इनपुट आउटपुट सेम है, सिर्फ स्टेट्स आपके पास कम हो गई हैं। अब ए बी सी डी ई कहाँ 7 फ्लिप फ्लॉप्स या 7 स्टेट्स थी और कहाँ आप 5 फ्लिप फ्लॉप्स पे आ गए हो। तो इस तरह से हमने स्टेट रिड्यूस कर दी है। द सिक्वेंशियल सर्किट ऑफ दिस एग्जांपल वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 to 5 स्टेट्स। ठीक है, in general reducing the number of states in a state table may result in a circuit with less equipment. However, the fact that a state table has been reduced to few states does not guarantee a saving in number of flip flops or the number of gates. ठीक है, हम स्टेट्स को रिड्यूस तो कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट टेबल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि जो कम सर्किट से ये अब इंप्लीमेंट होगा, मगर एक फैक्ट ये भी एग्जिस्ट करता है कि जब आप स्टेट टेबल को फ्यू स्टेट्स पे रिड्यूस कर दो, ये गारंटी नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कम हो जाएंगे या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशनल गेट्स आपके पास कम हो जाएंगे। इसके बाद हम स्टेट असाइनमेंट पे बात करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने स्टेट रिडक्शन पे देखा है, एक एग्जांपल दी है, हमारे पास एक स्टेट मशीन थी, स्टेट मशीन आपके पास एक एनालिसिस के बाद का रिजल्ट था, हमारे पास एक स्टेट मशीन स्टेट डायग्राम आ गई, उस स्टेट्स में हमने इक्विवेलेंट स्टेट्स को रिमूव करके हम कम स्टेट्स पे आ गए हैं। ठीक है, स्टेट असाइनमेंट आप देख रहे हैं, in order to design a sequential circuit with physical components it is necessary to assign a unique coded binary values to states। बाज़ दफ़ा हम लोगों को जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाते हैं फिजिकल कंपोनेंट से, तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम स्टेट्स को बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करें, और फॉर अ सर्किट विथ m states the codes must contain n bits where 2 raised to power n is greater than or equal to m। m स्टेट्स के लिए आपके पास 2 raised to power n कोड्स बनते हैं। मींस अगर आपके पास 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, 3 स्टेट्स हैं या 2 स्टेट्स से बात करते हैं, 2 स्टेट्स हैं S0 S1, इनको बाइनरी कोड में 00 असाइन कर दूंगा, तो बाइनरी कोड 0001 1011। अब जो S0 S1 S2 और S3 थी, उसके स्टेट्स की जगह हम लोग बाइनरी कोड से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कोड्स 2 raised to power 2 हैं। ठीक है, 4 आपके पास कोड्स आपने बाइनरी कोड्स यूज किए हैं। ठीक, if the state table of previous example is used, we must assign binary values to 7 states and the remaining states is unused। अब जब हम बाइनरी अप्लाई करते हैं, जिस तरह 7 का केस है, ठीक है, 2 raised to power 7 स्टेट्स हैं आपके पास, तो आपको 3 बिट का कोड चाहिए। अब 3 बिट के कोड में आपके पास 8 कोड्स आ जाते हैं। ठीक है, जब आप स्टेट असाइनमेंट करोगे तो आपके पास एक कोड आपका जाया हो रहा होगा। ठीक है, एक कोड ऐसा होगा जो किसी को आप असाइन नहीं करोगे, और जब आप इसको 5 स्टेट्स पे रिड्यूस कर देते हो, तब आप देख रहे हो कि आपके पास 3 कोड्स जो हैं वो अनयूज्ड रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 कोड्स बनते हैं, 8 कोड में से 3 कोड्स आपके पास अनयूज्ड रहते हैं। जो अनयूज्ड स्टेट्स होती हैं उनको हम डोंट केयर कंडीशंस कहते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन, सिंस डोंट केयर कंडीशन यूजुअली हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ सिंपलर सर्किट। तो जो डोंट केयर कंडीशंस होती हैं वो के मैप के अंदर आप देखते हो कि आपके पास के मैप के साथ वो पेयर बना रही होती हैं, तो जो डोंट केयर कंडीशंस के आप सर्किट को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, The simplest way to code a 5 state is to use the 5 integers in binary counting order। अगर आप बाइनरी काउंटिंग ऑर्डर में बाइनरी 1 0 1 काउंटिंग ऑर्डर में देखें तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 फिर 1 0 1, तो ये आपके पास स्टेट्स आ जाएंगी। Another similar assignment is the gray code in which only one bit in the code group changes when going from one number to the next। This codes make it easier for Boolean function to be placed in the map for simplification। एक और तरीका जो स्टेट असाइनमेंट का है, ठीक है, एक तो हम बाइनरी में
काउंटिंग ऑर्डर के हिसाब से स्टेट्स को कोड असाइन कर रहे हैं। दूसरा तरीका आपका ग्रे कोड्स से भी आप यूज कर सकते हो असाइनमेंट के लिए। अब ग्रे कोड्स आपको याद हो, हमने आई थिंक चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में ग्रे कोड्स को पढ़ा था। अब ग्रे कोड्स में सिर्फ एक बिट चेंज होती है, जो चेंज आता है वो एक बिट का आता है। अब ग्रे कोड्स की जब आप स्टेट असाइन करते हो तो ग्रे कोड से फिर आपको मजीद सर्किट को सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाता है। Another possible assignment often used in the design of state machine to control data path units is the one-hot assignment. This configuration uses as many bits as there are states in the circuit and at the given time only one bit is equal to 1. एक और जो तरीका है वो है one-hot assignment का। अब one-hot assignment में होता ये है कि अगर आपके पास 5 स्टेट्स हैं तो आप 5 बिट का कोड यूज कर रहे हो, मगर एक गिवन टाइम में सिर्फ एक ही बिट 1 होगी, डिकोडर की तरह। ठीक है, जैसे डिकोडर में आउटपुट पे एक वक्त में सिर्फ एक ही बिट 1 हो सकती थी, इसी तरह वन हॉट असाइनमेंट में आपके पास अगर 5 स्टेट्स हैं, आप 5 बिट का कोड यूज कर रहे हो, उसमें से सिर्फ एक बिट को ही आप 1 कर सकते हो, बाकी बिट्स आपके पास 0 रहेंगी एक गिवन टाइम के लिए। अब इसमें देख लें, ये मैंने स्टेट्स असाइन की हुई हैं। ठीक है, बाइनरी स्टेट्स हैं असाइनमेंट 1 में है, जो हमारे पास बाइनरी काउंटिंग ऑर्डर है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0 आ रहा है। जो 5 रिड्यूस स्टेट थी उनको हमने कोड्स ये असाइन कर दिए हैं। इसी तरह अगर दूसरी असाइनमेंट आप देखें तो ग्रे कोड है, ग्रे कोड में ये 0 1 हो रहा है। ठीक है, ये 0 1 हो रहा है, फिर ये वाला 1 0 हो रहा है और फिर ये वाला 0 से 1 हो रहा है। ठीक है, तो हर एक नेक्स्ट असाइनमेंट में आपके पास सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है। और तीसरा में जो वन हॉट असाइनमेंट है, वन हॉट असाइनमेंट में आपके पास 5 बिट का बाइनरी कोड है और 5 बिट के बाइनरी कोड में सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेट 1 है, बाकी सारे जीरोस हैं। तो ये स्टेट असाइनमेंट की एक समरी आ रही है। ठीक है, अब हम आते हैं बाइनरी स्टेट्स को। जब हमने स्टेट्स असाइन कर दी हैं तो अब हमारे पास इसकी इक्वेशंस निकालना इजी हो गया है। इस पे बात करते हैं। जिस तरह अब ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स हैं A B C D। ठीक है, 0 1 1 0, ये जो प्रीवियस स्टेट टेबल है उधर से ही आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास ये स्टेट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास ये स्टेट्स आ रही हैं और x इज इक्वल टू 0 की आउटपुट ये आ रही है, x इज इक्वल टू 1 की आउटपुट मेरे पास ये आ रही है। अब जो आउटपुट है उस पे देखें, एक आउटपुट x इज इक्वल टू 0 तो थ्रू आउट 0 है। ठीक है, दूसरी आउटपुट कब 1 है, जब 1 0 0 से आप 0 1 1 की तरफ मूव कर रहे हो या 0 0 0 से आप 0 1 1 की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, दोनों जो है वो दोनों की नेक्स्ट स्टेट आपके पास सेम ही आ रही है। The table is the reduced state table with binary assignment 1 substituted for the letter symbol of the states। ठीक है, हमने binary assignment 1 यूज किया है। Different assignment will result in a state table with different binary values for the state। अगर आप दूसरी assignments यूज करोगे तो आपके पास उसका state table भी different ही बनेगा। The binary form of the state table is used to derive the next state, the output forming combinational logic part of the sequential circuit। ठीक है, जो बाइनरी फॉर्म ऑफ द स्टेट टेबल आपके पास जो बाइनरी फॉर्म थी वो यूज होती है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट बनाने के लिए कि आप उसका कॉम्बिनेशनल पार्ट आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ऑन द बाइनरी स्टेट असाइनमेंट चूजन। तो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उस पर हमने बात की है कि वन शॉट असाइनमेंट में आपके पास बिट्स ज्यादा हो रही हैं। अगर आप ग्रे कोड्स को यूज करते हो तो आपके पास मैपिंग इजी हो जाती है, और अगर आप नॉर्मल बाइनरी ट्रांसलेशन जो असाइनमेंट 1 यूज कर रहे हो तो वो हमने अभी प्रीवियसली यूज किया है। समटाइम्स द नेम ट्रांजिशन टेबल is used for a state table with a binary assignment. This convention distinguish it from the state table with symbolic names of the states. हम जब बाइनरी असाइनमेंट्स के साथ या स्टेट असाइनमेंट्स के साथ जब स्टेट टेबल बनाते हैं तो उसको हम ट्रांजिशन टेबल का नाम देते हैं, हम उसको स्टेट टेबल नहीं कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन टेबल का नाम है ये उसको स्टेट टेबल से अलग कर रहा होता है कि ट्रांजिशन टेबल का मतलब है कि आपकी बाइनरी असाइनमेंट्स हुई हैं स्टेट्स को, और जो स्टेट टेबल है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास असाइनमेंट्स हो रही होती हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं उनसे आप स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो।
तो आज का लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर डिज़ाइन प्रोसीजर पे बात करेंगे कि हम कैसे सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को कैसे असाइन कर सकते हैं। स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट दोनों बहुत इजी टॉपिक्स हैं। मुझे उम्मीद है आप इससे गो थ्रू करेंगे, और अगर आपका इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो वो फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।